لیکن دوسری طرف جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن مذاکرات ہیں اس کو مشروط کر دیا ہے معاہدہ ابراہیمی سے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں یہ اگر چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو جائے تو یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک ٹیلی فون کال تھی، جو کانفرنس کال تھی، اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کام کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ان امن مذاکرات کو سیبوٹاج کر رہے ہیں اور شاید نیتن یاہو کی پراکسی بن چکے ہیں. اس سے کیا انہوں نے پاکستان کو امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے، یا پاکستان سے ایک ایسا مطالبہ کر دیا ہے جو کہ میڈیٹر کے طور پہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے؟ اور ٹرمپ صاحب کی اس حرکت کے بعد، میں نے اس کو حرکت اس لیے کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی ان ڈپلومیٹک قسم کا کام انہوں نے کیا ہے کہ معاہدہ ابراہیمی کو بیچ میں لے آئے ہیں. تو کیا اب جو ایران اور امریکہ کے جو امن مذاکرات ہیں یہ کوئی حقیقت بن سکتے ہیں، یا اس میں کوئی ڈیڈ لاک آ جائے گا؟ اس میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ اسپنر ہوتا نا دوستوں، تو یہ گوگلی پہ گوگلی ڈالتا. اب اس نے پھر ایسی ایک بات کہہ دی ہے جس سے سب لوگ بڑے اسمنجس، ایک بڑے عجیب سے انکمفرٹیبل سے ماحول میں آ گئے ہیں. کہاں بات چل رہی تھی ایران کی اور امریکہ کی، صلح ہو جائے گی، پھر ایران یہ بول رہا تھا کہ نہیں صاحب جو اسرائیل ہے لیبنان میں بمباری کر رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، نہیں تمہارا نیوکلیئر مٹیریل کہاں ہے. اچانک ایک ایسی چیز ڈونلڈ ٹرمپ بولتا ہے جس سے پورے مڈل ایسٹ میں ہڑکمپ ہو جاتی ہے. تو چلیے دوستوں دیکھتے ہیں یہ نئی ارتھکویک کیسی ہے. ٹروتھ سوشل پہ ڈونلڈ ٹرمپ پوسٹ کرتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی سی یہ پوسٹ ہے، پوری ایک کہانی ہے. میں پوری کہانی آپ کو پڑھ کے نہیں بتاؤں گا، بس میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جو مین چیز ہے جس سے کہ ایک بڑا انسرٹن سا ماحول ہو گیا ہے. میں نے بولا نا اس نے پھر سے گوگلی مار دی. یہ دیکھیے صاحب. During my discussions on Saturday with President Mohammed bin Salman Al Saud of Saudi Arabia, Mohammed bin Zayed Al Nahyan of the United Arab Emirates, Emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim bin Jabar Al Thani, and Minister Ali Al Thawari of Qatar, Field Marshal Sayyid Asam Munir Ahmad Shah of Pakistan, President Recep Tayyip Erdogan of Turkey, President Abdul Fattah al-Sisi of Egypt, King Abdullah II of Jordan, and King Hamad bin Isa al-Khalifa of Bahrain, I stated that after all the work done by the United States to try and pull this very complex puzzle together, it should be mandatory that all of these countries at a minimum simultaneously sign into the Abraham Accords. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल. मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम. हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. दोस्तों, 2 रोज़ कबल मैंने आपको बताया था कि सदर ट्रंप ने जो ईरान के साथ अगर अमल करना है तो उसने ये शर्त रखी थी कि जो भी मुस्लिम ममालिक हैं वो इब्राहिम माहदे पर, अब्राहम अकार्ड पर दस्तखत करे. और उनमें ख़ास तौर पर उसका कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तो होने ही चाहिए. अब पाकिस्तान तो ये जो बातचीत हो रही है अमन की अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसमें सालिस है, वो मीडिएशन कर रहा है. तो अभी उसका तो वैसे भी किरदार जो है वो कलीदी है. अब वो कैसे इससे जान छुड़ा सकता है जो खुद चाहता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन हो जाए. अच्छा, अभी जैसे ही ये बात सदर ट्रंप ने कही, मैंने आपको बताया था, पाकिस्तानियों के मैंने प्रोग्राम भी दिखाए थे आपको, कि वो लोग तो मानने से रहे, क्योंकि पाकिस्तानियों को, यानी जब से पाकिस्तान बना है, द डे ऑफ इंसेप्शन, फ्रॉम द डे ऑफ इट्स क्रिएशन, पाकिस्तानियों को एंटी इंडिया, एंटी इसराइल की घुट्टी पिलाई गई है. यानी यूँ समझ लीजिए कि वो इस्लाम को नहीं मानते, वो हिंदुस्तान दुश्मनी और इसराइल दुश्मनी को मानते हैं. इतनी हद तक वो इन दोनों ममालिक से नफरत करते हैं. अब जैसे ही
सदर ट्रंप ने ये कहा, और मैंने आपको पाकिस्तानियों के प्रोग्राम भी दिखाए थे। तो कल पाकिस्तान में ईद थी, यहाँ पर भी ईद उल अज़हा, कुर्बानी की ईद जिसे कहते हैं या बकरी ईद कहते हैं। तो लश्कर तैयबा जो कि दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान की ISI की बनी हुई है, भले वो नहीं मानते हों, लेकिन खुलम खुला वो लोग जो है पैसे इकट्ठे करते हैं, कलेक्शंस करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ आए दिन जो है हमले करते रहते हैं। बल्कि पिछले साल तकरीबन इन्हीं दिनों मई के महीने में अप्रैल के महीने में उनकी ही एक आउटफिट थी, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने कश्मीर में पहलगाम पे जो है मज़हब पूछ कर 26 हिंदुओं का कत्लेआम किया था, जिसके बाद जंग भी हुई थी 5 दिन की, 7 तारीख से लेके 10 तक, तो चार दिन की। तो उनको तो हिंदुस्तान और इसराइल दुश्मनी की गुटी पिलाई गई है, अब वो कैसे मानेंगे। तो कल लश्कर तैयबा का जो नायब अमीर है, वाइस प्रेसिडेंट कह दीजिए, वो लोग अरबिक नाम रखते हैं जैसे अरबों की औलाद हों, तो उसने एक जलसे में कहा तकरीर करते हुए कि हम देखते हैं कौन इसराइल को तस्लीम करता है। यानी सीधी सीधी उसने पाकिस्तान की हुकूमत को चैलेंज कर दिया, यानी कोई भी अगर इसराइल को तस्लीम करेगा तो उसकी जान की खैर नहीं है, उसने यहाँ तक कह दिया। और इसमें ये जो पाकिस्तानी हैं उनके मैं प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, वो लोग तो ये जैसे हामिद मीर है, वो लोग तो इसराइल को जो है अलग से मुल्क रखना ही नहीं चाहते, तस्लीम करने की बात तो बाद में है। अभी जैसे पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन वैसी ही है जैसे भारत की भी है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, यानी इसराइल भी रहे और फ़लस्तीन भी रहे। लेकिन ये हामिद मीर और जो दूसरे पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया है, वो लोग तो इसराइल को जिंदा ही नहीं रखना चाहते। ठीक जैसे ईरान कहता रहा है, उसी तरह वो लोग भी ऐसा कहते रहे हैं, डेथ टू इजराइल, यानी सारे इसराइलियों को मार के और मेडिटेरेनियन समंदर में डुबो दिया जाए, ऐसी हालत है। अच्छा, अभी सदर ट्रंप ने तो ये बात भी कह दी और ये भी उसने कहा था कि ईरान के लिए वक्त गुजरता जा रहा है, ईरान को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए कि उसे अमन चाहिए या जंग। अब ईरान ने अमेरिका की इस डील को, ज़ाहिर है 8 मार्च के बाद से जंग बंद है, तो तकरीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं, तो 8 अप्रैल से 1.5 महीना हो चुका है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे अमेरिका डर गया है, तो उसने भी एक अजीब अजीब किस्म की बातें करना ईरान ने शुरू कर दिया। एक तो जैसे समुद्री सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया, रास्ते पे चलते हुए हवाई पानी के जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए, और उसने ये कहना भी शुरू कर दिया कि एक तो हम अपना एटॉमिक प्रोग्राम ख़त्म नहीं करेंगे, दूसरे हमको $24 बिलियन का हर्जाना दो। अमेरिका से वो मांगते हैं कि तुमने हमारा नुकसान किया है, यू हैव टू पे अस $24 बिलियन। और उसके अलावा हॉर्मुज़ के ऊपर वो अपना कब्जा मुस्तकिल रखना चाहते हैं। वो मैंने आपको समझाया था कि इस तरह दे कैन अर्न $300 मिलियन पर डे, दे कैन अर्न, यानी यह है दादागिरी की कीमत। लेकिन उनको अभी जैसे वो कहते हैं ना, शेर को इंसानी खून लग जाए, तो अभी इसके बदले में फिर मैंने ये भी बताया था 2 दिन के बिल कि सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौजों को हुक्म दे दिया है और उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं, और बंदर अब्बास पे हमले किए, मिसाइल के जो डिपो हैं उनके ऊपर हमले किए। अब धड़ाधड़ जंग चालू हो गई है, और ईरान में जहाँ पर भी उनके मतलब
जमावड़े हैं उनकी फौजों के, मिसाइलों के, उनके ऊपर अभी तो सिर्फ सेंटकॉम की फौज नहीं, अमेरिका से उड़ के B-2 बमबार आ रहे हैं और बंकर बस्टर से उनके जो मिसाइलों के अड्डे हैं उनको उड़ा रहे हैं। तो अभी जंग में तेजी आ गई है। और भले पाकिस्तानी लोग कुछ भी कहें, जब तक ये लोग, या यूं समझ लीजिए कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमास की जिद ने आज गजा को खंडर बना दिया, और जंग भले 2-2.5 साल चली, लेकिन आज गजा खंडर बन गया है। और ये हमास की जिद थी कि वो नहीं मानेंगे। इसी तरह अगर ईरान की ये जो ताज़ा सरकार है वो भी नहीं मानती, तो ईरान भी गजा की तरह खंडर बनकर रह जाएगा। वैसे आप पाकिस्तानियों को सुनिए, वो क्या कहते हैं, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है, इसमें आप तस्वीर भी देखें कि ईरान विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, और साथ में ट्रम्प साहब की तस्वीर लगाई हुई है उसने। वो तो खुद भी ईरान कह चुका कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे। नहीं, लेकिन नेतन्याहू तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प के बॉस बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली लग तो यही रहा है कि, और आज भी खबर आई थी कि नेतन्याहू ज़रा नाराज़ हैं और इसलिए ट्रम्प ने कह दिया कि हम इतनी जल्दी में नहीं है मुआहदा करने के लिए। अच्छा, एजाज चौधरी साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने मुतालबा कर दिया है, बल्कि शर्त रख दी है जी कि मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान, तुर्की, कतर और दीगर ममालिक, बहुत से ममालिक के नाम लिखे हैं उन्होंने, ये मुआहदा इब्राहिमी को ज्वाइन करें, यानी कि इजराइल को तस्लीम करें। तो क्या ये जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, इन्होंने खुद ही ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात पे एक बम गिरा दिया और अब इन मुज़ाकरात की में एक डेडलॉक पैदा हो जाएगा? अचानक एब्राहम अकॉर्ड्स की बात करना, दोस्तों जब पहली बार ये प्रेसिडेंट थे, ये एब्राहम अकॉर्ड्स लेकर आए थे, और एब्राहम अकॉर्ड्स जो प्रॉफिट एब्राहम हैं, तो माना जाता है कि उन्हीं से ही ये 3 धर्म निकले, यानी कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। तो ये एब्राहमिक फेथ्स इनको कहा जाता है, तीनों को एब्राहमिक फेथ्स। और इनमें जो ये अपने प्रॉफिट्स को भी मानते हैं, जो आए थे मैसेंजर्स हैं, या अलग अलग समय पे जो प्रॉफिट्स आए थे, वो सेम है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। जिनको डेविड बोलते हैं बाइबल में, या ओल्ड टेस्टामेंट में डेविड बोलते हैं, उन्हीं को कुरान में दाऊद बोल देते हैं। इसी तरीके से डेविड, दाऊद और सिमिलर काइंड ऑफ नेम्स, बस इंडिविजुअल इज द सेम, द पर्सन दे आर स्पीकिंग ऑफ इज द सेम। तो इनको एब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है एब्राहमिक फेथ्स। इसमें क्रिश्चियन हो गया अमेरिका, इसमें जो यहूदी हैं वो होगा इजराइलीज, और बाकी मुसलमान कंट्रीज जिनका यहां पे नाम ले रहे हैं, इन सबको बोल दिया कि यार आपको एब्राहमिक अकॉर्ड साइन करने पड़ेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।